Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. Where this particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. Now let us look at nylon 66. Nylon 66 is a polymer of fiber class. Okay, so in fiber category we know that fibers are those materials which has very large lengths as compared to their diameters or width. It is categorized under diamine dibasic acid condensation polymer. Okay, why it is called so? It is here because it has got 6 carbon atoms of hexamethylene diamine and 6 carbon atoms of diacid, adipic acid. So its name 6,6 consists of this two 6 carbon atoms compound, that is hexamethylene diamine and adipic acid, and that is why it is known as diamine dibasic acid condensation polymer. Hexamethylene diamine and adipic acids are the raw material for the manufacturing of nylon 66. नाइलॉन 66 जो है वो पॉलीमर के फाइबर क्लास में आता है. फाइबर्स रेशे को बोलते हैं. रेशे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी लंबाई उनकी डायामीटर से या उनकी चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है. नाइलॉन 66 जो है डायमाइन डाइबेसिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर के ग्रुप में आता है. इसके नाम में दो सिक्स है. एक सिक्स है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के लिए और दूसरा सिक्स है एडिपिक एसिड के लिए. ये दोनों ही नाइलॉन 66 के बनाने के लिए उनके रॉ मटेरियल्स हैं. Chemical reactions involved. So first one is formation of adipic acid. The adipic acid is produced with cyclohexane, oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and hexanon, and then nitration at 80 degrees Celsius gives adipic acid, nitrous oxide and water. Next is chemical reaction for hexamethylene diamine. So acrylonitrile hydrogen goes under hydrogenation or dimerization to form adiponitrile, which further goes into amine hydrogenation to form hexamethylene diamine. Now these two compounds, adipic acid and hexamethylene diamine, undergoes reaction to form nylon 66 polymer, which is also known as polyhexamethylene adimide, and water is obtained as the byproduct. Those polymer reactions in which we get water as a byproduct are known as condensation polymerization. केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं. एक पहला रॉ मटेरियल जो है वो एडिपिक एसिड है. एडिपिक एसिड साइक्लोहेक्सेन से बनता है. साइक्लोहेक्सेन का एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन बनता है, जिसका नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे एडिपिक एसिड मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मिलता है. दूसरा रॉ मटेरियल है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, जो कि एक्रिलोनाइट्राइल से मिलता है. एक्रिलोनाइट्राइल का हाइड्रोजनेशन होता है डाइमराइजेशन, जिससे एडिपोनाइट्राइल मिलता है. उसका फर्दर अमोनिया के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन मिलता है. अब ये दोनों कंपाउंड एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं नाइलॉन 66 या पॉलीहेक्सामिथाइलिन एडिपामाइड, और वाटर मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट. Now let us look at the manufacturing process flow diagram of nylon 666. So in nylon 66, the raw materials adipic acid and hexamethyldiamine, as we have discussed, is fed into a stirred tank reactor which is jacketed, and steam is used as a heating medium. In this reaction mixture, we also add acetic acid, which provides the necessary pH for the reaction as well as maintain the viscosity of the reaction mixture. Once the reaction is completed, we get nylon salt, which are then cooled in the refrigeration system.
These cooled nylon salt are then fed to another reactor, stir tank reactor, where polymerization takes place, and this polymerization is takes place at high temperature. Therefore, diatherm is used as a heating medium. Once the nylon polymers are obtained, then they are sent to a casting roll which is being cooled with water, and we get the nylon polymer sheets which are chopped into nylon resins. Now, nylon resins are usually the final product, but if you want to use this nylon 66 as fibers, then we send it to melt tank, where the nylon resins are again melted down using Dowtherm and pressurized using nitrogen. And there is a filter which allows only nylon polymer to nylon fiber to flow down, and then the spinning takes place, where the nylon resins are converted into threads or filaments, which can then be used in textiles. We can directly use nylon resins also for various nylon 66 products. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम अब देख लेते हैं। तो स्टोर टैंक रिएक्टर का यूज़ किया जाता है, जिसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको हम डालते हैं। रिएक्टर को स्टीम की मदद से गर्म किया जाता है और एसिटिक एसिड डालते हैं रिएक्शन के पीएच को मेंटेन करने के लिए और रिएक्शन मिक्सचर के विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए। रिएक्शन पूरा होने के बाद हमें नाइलॉन के सॉल्ट्स मिलते हैं, जिसे हम एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मदद के द्वारा ठंडा कर देते हैं। इन नाइलॉन सॉल्ट्स को हम दोबारा एक दूसरे स्टर टैंक रिएक्टर में डालते हैं, जहाँ पे डाउथर्म की मदद से पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर दिया जाता है पॉलीमराइजेशन होने के लिए। इन नाइलॉन पॉलीमर्स को जो इस रिएक्टर में बनते हैं उनको हम फिर भेजते हैं एक कास्टिंग रोल में, जो कि पानी की मदद से ठंडा कर रहा है, और इस पर हम नाइलॉन की शीट्स बनाते हैं, जिनको फिर हम एक चॉपर में डाल के चॉप कर देते हैं। इसके बाद जो हमें मिलता है वो है नाइलॉन रेजिन्स। ये नाइलॉन रेजिन्स को हम डायरेक्टली ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यदि हमें नाइलॉन 66 के फाइबर्स चाहिए तो इन नाइलॉन रेजिन्स को फिर हम एक मेल्ट टैंक में डालते हैं। मेल्ट टैंक में ये रेजिन्स वापस से मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में बनते हैं। इसे मेल्ट करने के लिए डॉथर्म यूज़ करते हैं हीट करने के लिए, और नाइट्रोजन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक फिल्टर लगा देते हैं जिससे कि नाइलॉन 66 के में हमें कोई अनमेल्टेड या सॉलिड पीसेस नीचे आगे की प्रोसेस में ना जाए। फिर इसे स्पिन करते हैं, स्पिन करके इसे थ्रेड या फिर रस्सी या धागे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इसे हम टेक्सटाइल में आराम से यूज कर सकते हैं। So let us see the process in description. So, formation of nylon salt. 1:1 molar mixture of two monomers is prepared in water and pH of 7.8. They react to form hexamethylene diammonium adipide, that is nylon salt, a neutral salt. Pre-polymerization. The nylon salt solution is concentrated by a vacuum evaporation to about 60% solids. This helps in the removal of excess water before polymerization. Then polymerization, that is a condensation reaction, takes place. The polymerization is conducted in an autoclave at a temperature of 260 to 280 degrees Celsius. Pressure is 5 to 20 atmosphere, and then gradually it is reduced to atmospheric or vacuum to remove water. The reaction forms a long chain of polyamide molecules, and water as a byproduct is removed as steam. Extrusion and cooling. The final product with a molecular weight of 12 to 16,000 is extruded through a ribbon or chilling rods cooled via chilling water to form strands. Pelletizing. These strands are then chopped into small pellets for storage and handling. Then spinning and molding. Then these pellets are melt spun into fibers. Okay, chips are melted, transferred to high pressure pumps, filtered and passed through melt spinneret. The extruded filaments hardened quickly on air cooling and wound on bobbins at a speed of 750 rpm. The thread is stretched over 4 times to the original length in cold atmosphere to get the desired fiber properties, or else it is injection molded into engineering components. यदि हम प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन में जाने, तो सबसे पहले नाइलॉन का सॉल्ट बनाते हैं, जिसके लिए 1:1 1 के भाग में हम दोनों मोनोमर एडिपिक एसिड और डाइमिथाइल हेक्सामेथाइलिन डायमीन लेते हैं, और पीएच तब 7.8 मेंटेन करते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से हमें नाइलॉन सॉल्ट मिलता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है।
उसके बाद पॉलीमराइजेशन करने से पहले हम इवापोरेशन करते हैं, वैक्यूम इवापोरेशन, जिसमें हम नाइलॉन सॉल्ट में मौजूद पानी में से पानी को निकाल के 60% सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद ये 60% सॉलिड फॉर्म में जो नाइलॉन सॉल्ट है, इसको हम पॉलीमराइजेशन के लिए आगे एक ऑटोक्लेव में डालते हैं, जहाँ की टेम्परेचर 260 से 280 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर स्टार्टिंग में 5 से 20 एटमॉस्फेयर होता है, जिसे बाद में घटा दिया जाता है एटमॉस्फेरिक या वैक्यूम तक, जिससे कि पानी निकाला जा सके। The reaction forms a long chain of polyamide molecules. इस रिएक्शन के बाद पॉलीअमाइड के यानी कि नाइलॉन 66 के एक लंबे चेन के पॉलीमर्स हमें मिल जाते हैं। पॉलीमर बनने के बाद हम उसे एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने का मतलब है उसे हम लंबे रोल्स में हम उसे शीट में कन्वर्ट करते हैं और ठंडा करते हैं। एक बार ये शीट बन गई, फिर हम उसे एक चॉपर में डाल के उसका पेलेट्स या छोटे छोटे कट टुकड़ों में, ग्रैनुअल्स में उसे कट कर देते हैं। इन ग्रैनुअल्स को सीधा स्टोर कर सकते हैं। यदि हमें फाइबर बनाना है तो इन्हीं रेजिन्स का, इन्हीं स्टोर्ड पेलेट्स का हम स्पिन करके उन्हें एक्सट्रूड करके प्रेशर पंप और एक क्या कहते हैं एक्सट्रूडर में हम उसका वो कर सकते हैं, धागा बना सकते हैं। ये धागा उसके ओरिजिनल आकार से 4 गुना ज़्यादा लंबा तक खींचा जा सकता है। अगर हमें धागा या थ्रेड नहीं बनाना है तो हम इंजेक्शन मोल्डिंग की मदद से दूसरे कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, जिसका इंजीनियरिंग में उपयोग हो सकता है। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 के प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में देख लें। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसे काफ़ी लंबा खींच सकते हैं और वो ब्रेक नहीं होता है। गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन से नुकसान नहीं होता है। एक्सेलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, काफ़ी हाई टेम्परेचर तक टिक जाता है। गुड केमिकल रेजिस्टेंस स्पेशली टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स, किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्व से काफ़ी हद तक अवरोध रखता है। हीट हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 265 डिग्रीज, गलन बिंदु 265 डिग्रीज है। लो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस, पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, हल्का होता है और ड्यूरेबल होता है। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। टेक्सटाइल में फाइबर्स के रूप में यूज़ होता है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में गियर, बियरिंग्स, बुशिंग्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में स्विचेस, कनेक्टर्स वगैरह बनाने के लिए, फिशिंग रोप्स, नेट्स, टाई कॉर्ड्स, ये वगैरह बनाने के लिए भी नाइलॉन 66 का यूज़ होता है। और पैकेजिंग फिल्म एंड शीट्स के लिए भी नाइलॉन का यूज़ होता है। Thank you for this watching this video. Subscribe the channel for notification on upcoming lectures. You can post your queries as comment. You can share these videos with your friends and anyone who needs to learn about nylon 66. Thank you.